so strong and resilient. Both strength and resilience are core to what defined him. I remember in 2001 when Gujarat was hit by one of the worst earthquakes in its history, Papa ensured that immediate relief was provided. He mobilized teams and also asked me to go there personally. We left overnight from Jamnagar in trucks and buses to Anjar. There was unimaginable devastation and suffering all around. But Papa's words inspired us then and continue to inspire us today as we do all that we can to support India's fight against COVID. From contributions to various relief funds to Mission Anna Seva, under which we have distributed over 85 million free meals. From free fuel for emergency vehicles to essential deliveries and digital connectivity. From hospital beds and oxygen supplies to efficient vaccinations for millions. In every challenge that the pandemic posed, the Reliance family stood firmly with our nation. Reliance Foundation has so far vaccinated over 25 lakh people across the country, providing free vaccination to the most disadvantaged sections of our society. And we will continue to work hard for the well-being of all Indians. A special mention to our entire medical community of Sir H.N. Reliance Foundation Hospital and to all our frontline warriors from Reliance Foundation, Reliance business teams, our schools, sports team and corporate functions. You have all risen above your call of duty. Our doctors have saved countless precious lives, day and night selflessly. Our nurses have tested and vaccinated tirelessly with a smile on their faces. Our teachers have reskilled themselves and ensured that our children continue to learn from home. Our Mumbai Indians and Indian Super League players have spread so much joy, hope and cheer even in these difficult times. Our engineers have responded to every critical need of the hour, from producing PPEs to life-saving oxygen. Please join me in applauding the entire Reliance family for your outstanding contribution to this crusade against COVID. Along with COVID relief, our other developmental work also continued in full swing. I am humbled to share with you that Reliance Foundation has now touched the lives of over 55 million Indians in the remotest towns and villages of our country. रिलायंस फैमिली डे 2021 के मौके पर नीता अंबानी खिताब कर रही थी। आगे बढ़ते हैं। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों में दर्जे हरारत में कमी आई है। श्रीनगर में दर्जे हरारत मनफी से ज़्यादा ही दर्ज किया जा रहा है। खासी तादाद में सयाह भी कश्मीर पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग सयाहों से भरा हुआ है। वहीं श्रीनगर शहर में भी खासी तादाद में सयाह देखे जा रहे हैं। डल झील में सयाहों की खूब चहल पहल है। सयाहों का कहना है कि मौसम सरमा में कश्मीर की सैर एक मुनफरिद तजुर्बा है। वो यहाँ खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। डल झील के किनारों पर जनूबी हिंद के कई सयाह सर्दी से ठिठुरते नजर आ रहे हैं, मगर उनका कहना है कि ये भी उनके लिए एक अलग तजुर्बा है। Only one word, awesome. जन्नत बोले थे लेकिन कभी फील नहीं किया था. Today I feel. Before this I went to Manali also. लेकिन मनाली का मजा अलग है. कश्मीर कश्मीर है. Nobody can beat Kashmir. सब लोग ऑलमोस्ट 3 घंटे दाल लेक में घूम रहा था। ये मार्केट भी फ्लोटिंग मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है। स्पेशली शाल के लिए और तिवाची के लिए, कारपेट्स के लिए बहुत अच्छा है मार्केट। बहुत मज़ा आया। यहाँ का स्नोफॉल देखा हमने। गुलमार्ग गए, बहुत मज़ा आया वहाँ पर हमें। ठंड ने परेशान तो नहीं किया? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान किया, लेकिन अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। काफ़ी सर्दी तो पड़ रही है लेकिन मज़ा काफ़ी आया यहाँ पे। काफ़ी मज़ा आया घूमने में। हम जाके गुलमर्ग जाके थे, काफ़ी बर्फ़ गिर रही थी, काफ़ी मज़ा आया पे। यहाँ शिकार राइड करी, उसमें भी काफ़ी मज़ा आया। यहाँ के जो लोग हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, मिलनसार हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं, इनकी बोलचाल भी अच्छी है, काफ़ी मज़ा आया।
सयाहती मकाम गुलमर्ग में जारी विंटर कार्निवल में मकामी और गैर मकामी सयाह खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कार्निवल के 5वें रोज भी मुख्तलिफ फनकारों ने अपने फन का जादू बिखेरा। तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्रामों से बड़ी तादाद में सयाह लुत्फ अंदोज हुए। महकमे सयाहत की जानिब से मुनक्किदा विंटर कार्निवल में कई सरमाई खेलों का भी इनकाद होगा। सयाहों ने महकमे सयाहत और JKTDC की जानिब से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। ये विंटर कार्निवल 1 जनवरी 2022 तक जारी रहेगा। टूरिज्म ने तो कमाल ही कर दिया। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें इतना अच्छा इंतजाम देखने को, बैकड्रॉप विच इज स्पेक्टेकुलर, और ये म्यूजिक और खाना और वार्मथ और लोगों का की हॉस्पिटैलिटी, इट इज रियली ओवरवेलमिंग, ब्यूटीफुल। और सीनरी आप देख ही रहे हो, बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आया। मैं तो कहता हूँ यही आऊँगा मैं हर साल। म्यूजिक में बहुत मजा आया, खाना बहुत टेस्टी है, तुझी खाया हमने, वाजवान खाया हमने, बढ़िया है, कहवा बहुत टेस्टी था, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा इंतजाम किया हमारे लिए। है कि यहाँ पे JK टूरिज्म ने बहुत अच्छा बंदोबस्त किया है। तो कश्मीर में पहली बार है। अब जो ये बोलते हैं ना जन्नत कश्मीर, ये एक्चुअली सिग्निफाई कर रहा है। जिला पुंछ में PWD की मैकेनिकल विंग ने बर्फबारी मुतासरा इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाने का काम अंजाम दिया। तारीखी मुगल रोड पर भी बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। कई इलाकों में ये काम मुकम्मल किया गया है। मुगल रोड पर पुंछ की तरफ से पोशाना आर्मी पोस्ट तक बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है। पोशाना से आगे शाहरा अभी बंद है। मैकेनिकल विंग के AEE के J शर्मा ने न्यूज 18 उर्दू को फोन पर बताया कि जिले के बालाई इलाकों में सभी सड़कों से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है। जिला पुंछ के बालाई इलाकों में 2 रोज के बाद बर्फबारी रुक गई है। इसके बाद मकामी सयाहों ने बर्फबारी वाले इलाकों का रुख करना शुरू कर दिया है। ये सयाह बर्फ से खूब मस्ती करते नजर आए। सुरनकोट तहसील के पानार इलाके में मेंढर और पुंछ से खासी तादाद में सयाह पहुंचे थे। सयाह बर्फ से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जिला इंतजामिया पुंछ ने 2 साल बाद पार्कों को आवाम के लिए खोल दिया है। कृष्ण चंद्र और परेड ग्राउंड पार्क में लोगों की खासी तादाद देखने को मिली। शहर की पार्क्स को खोलने के इक़दाम से लोग खुश हैं। महकमे फ्लोरिकल्चर के मुलाजमीन का कहना है कि लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है। पार्क में आने वाले हर शख्स को मास्क पहने और समाजी दूरी रखने की हिदायत दी जा रही है। अच्छा कि हमारे पास पार्क खुलना, राशनी धूप लगाने, सर्दी में पंजाब में ठंड है, पार्क में अच्छा चाहिए हमें, और मास्क लगाना चाहिए, हमारा काम मास्क लगाना। बहुत सारी औरतें हैं जिनके साथ बच्चे होते हैं, जिनको बैठने की जगह नहीं होती है, और ये पार्क ना खुलने की वजह से वो इधर उधर भटकते रहते थे। आज आप देखते हैं कि कृष्ण चंद्र पार्क में और यहाँ पार्क में भी काफ़ी चहल पहल है, लोग आराम सुकून से बैठे हुए हैं, और दूसरा सर्दियों का मौसम है, थोड़ी धूप भी सेक रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। लोगों की परेशानी आ रही थी, हम इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियाँ थी जिससे लोग इकट्ठे हो जाते थे, मास्क डालते नहीं, एक दूसरे से परहेज नहीं करते। अभी भी आप देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लोगों की कि मास्क डालो, एक दूसरे से डिस्टेंस ही रखो और साफ सफाई का ख्याल रखो। हमारे जगह जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, लेकिन उसमें अगर कुछ खा रहे हो तो कम से कम डस्टबिन में डालो, एक दूसरे से डिस्टेंस ही रखो। सेंगडू सयाह लेह में वाक़े दुनिया के वाहिद मुंजमिद चादर ट्रैक के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ताहम ओमाइक्रॉन का खतरा इस पर मंडला रहा है। इंतजामिया की जानिब से इस ज़मन में अभी कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया है। पेश है नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। लद्दाख यूटी के लेह जिले में वाक़े मुंजमिद चादर ट्रैक दुनिया का सबसे लंबा और दिलफरेब ट्रैकिंग रूट है। दुनिया भर से हजारों सयाह लेह से ज़ंस्कार इसी रूट से जाते हैं। चादर ट्रैक के लिए बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन होता है और मकामी माहिर गाइड्स और इंतजामिया की देखरेख में यह ट्रैकिंग की जाती है। ट्रैकिंग की यह रूट तकरीबन 100 किलोमीटर पर मुहित है। मनफी 30 डिग्री सेल्सियस में मुंजमिद दरियाए सिंध पर से गुजरना काफी जोखिम भरा रहता है। सयाह गर्म मलबूसात पहनकर अपने साथ सामान लेकर दरिया के अलावा पुरखतर पहाड़ी इलाकों से गुजरते हैं। एडवेंचर टूरिस्ट्स के लिए यह सफर काफी यादगार रहता है, लेकिन रवां साल इस ट्रेकिंग पर कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन का खतरा मंडला रहा है। लद्दाख इंतजामिया की जानिब से खेल कूद समेत दीगर सरगर्मियां महदूद कर दी गई हैं। चादर ट्रैक को लेकर इंतजामिया ने अभी कोई हतमी फैसला नहीं लिया है। सेक्रेटरी महकमे सयाहत काचू महबूब अली खान ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि चादर ट्रैक के इम्कानात का जायजा लिया जा रहा है।
अभी उस पर फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। हिल काउंसिल और हमारे डीसी ले ने एक मीटिंग रिसेंटली किया था, एक प्रिलिमिनरी मीटिंग किया था। उसमें सबका ये मानना था कि कोविड जो ओमिक्रॉन आ रहा है, नया एक स्ट्रेन आ रहा है, प्लस चादर जो रूट है बहुत टफ रूट है, अगर प्रॉब्लम आ जाए वहाँ पे मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए हम इमीडिएटली अभी हम बैन भी नहीं कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे 1-2 वीक और देखेंगे अभी क्या रहता है। जैसे इंडिया में थोड़ा बढ़ रहा है ओमिक्रॉन का, तो यहाँ देखो एयरपोर्ट पे RT-PCR स्टार्ट हो गया, तो किसी का पॉजिटिव आ गया तो बेचारे को आइसोलेशन में रहना पड़ेगा 2 हफ्ते। तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हम कितना मैनेज कर पाएंगे वो भी हमें देखना होगा। हो सकता है अगर हम एक छोटे लेवल पर अलाउ कर सकें तो पूरा ज़ांस्कार तक ना करें, 5-10 किलोमीटर हम अलाउ करें, उसके लिए हमें रेगुलेशन बनाना होगा। आदाद शुमार के मुताबिक लद्दाख में 190 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस हैं। लेह में तकरीबन 140 और करगिल में 50 केस हैं। लेह जिले में एक ओमिक्रॉन केस भी सामने आया है। इस साल चादर ट्रैक का इनेकाद होगा या नहीं, इसका पता तो आने वाले दिनों में चलेगा, लेकिन सयाह इस मुनफरिद ट्रैकिंग के मुंतजिर हैं और पुरुम्मीद भी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लेह से नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपने एनफोर्समेंट विंग के जरिए आज नालाबल, नौशारा, बागवानपुरा, लाला बाजार और मदीना मस्जिद के करीब नगीन के इलाकों में इन्हदामी मुहिम चलाई। इन्हदामी मुहिम के दौरान गैर कानूनी तौर पर तामीर करदा 2 सुतून, 1 छत और 1 दीवार को मुनहदम कर दिया गया। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में जमा शरपसंदों की जानिब से मामूली मज़ाहमत की गई, ताहम डिमोलिशन टीम ने गैर कानूनी तौर पर खड़ी की गई तामीरात को मुनहदम कर दिया। जम्मू में 2 रोज़ा गोजरी कॉन्फ्रेंस शुरू की गई। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कल्चरल एकेडमी जम्मू कश्मीर ने किया। पूरी यूटी से गोजरी अदीब, फनकारों और दानिश्वर इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। पद्मश्री जितेंद्र उधमपुरी मेहमान खसूसी थे। एडिशनल सेक्रेटरी राजीव राणा मेहमान जी वक़ार रहे। कल्चरल अफसर और गोजरी ज़बान के इंचार्ज डॉक्टर शाहनवाज चौधरी ने कहा कि गोजरी ज़बान और अदब को फ़रोग़ देने के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी यहाँ मैं बल्कि दूसरी ज़बान में कहूँगा जिसमें 25 से 20 लाख के आसपास गुजर जो हैं यहाँ गोजरी ज़बान बोलते हैं। ये उनकी एक नुमाइंदा ज़बान है और एक लार्जेस्ट ग्रुप की ज़बान है। तो इसमें जो कुछ हमें डेवलपमेंट के लिए, इसकी प्रिजर्वेशन के लिए जो कुछ करना है उसके यही तरीके हैं कि हम इस ज़बान में कॉन्फ्रेंसेस करें, सकाफ़ती मेल करें, इसमें म्यूज़िक के प्रोग्राम करें। तो उसी सिलसिले की कड़ी जो है एक आज यहाँ पर इसका इनेकाद किया है। हाँ, हर साल एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मनाई जाती है और फिर भी ये प्रोग्राम जो है वो हर वक्त में किए जाते हैं और दूर दराज से आर्टिस्टों को, अदीबों को, मुफक्करों को, जो भी नावल निगार या किसी तरह के नसर नज़म लिखने वाले तमाम जो इस फील्ड में काम करने वाले उनको बुलाया जाता है। इससे ये होता है कि जो एक कबीले की तहजीब है, तमद्दन है, उसका कल्चर है, उसकी सकाफ़त है, उसको। जम्मू कश्मीर के मारूफ संतूर नवाज और मौसीक़ार पंडित भजन सोपोरी को मध्य प्रदेश हुकूमत ने बावकार कौमी कालिदास सम्मान देने का ऐलान किया है। भजन सोपोरी को यह अवार्ड 29 दिसंबर को ग्वालियर में दिया जाएगा। भजन सोपोरी को जम्मू कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों के बीच एक कल्चरल ब्रिज तस्वुर किया जाता है। उनको अब तक कई कौमी और बैन अवी अवार्ड्स और एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। कांग्रेस के 137वें यौम तासीस के हवाले से जम्मू में पार्टी की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। पार्टी के कारगुजार सदर रमन भल्ला, खासी तादाद में कारकुनों और दीगर कई सीनियर लीडरान ने इसमें शिरकत की। लीडरान ने रिवायती सलाम के साथ साथ कौमी तराना गाया। रमन भल्ला ने कारकुनों से तलकीन की कि वो जमहूरियत को बचाने और तानाशाही से लड़ने के लिए मुत्तहिद हो जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए कांग्रेस ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। कांग्रेस के यौम तासीस के सिलसिले में श्रीनगर में वाक़ पार्टी दफ्तर पर एक तकरीब का इनेकाद हुआ। पार्टी के कई मकामी लीडरान और कारकुन मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया था। उनसे जब हदबंदी कमीशन की सिफारिशात पर कांग्रेस के मौक़िफ़ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई तबसरा करने से इनकार किया। शोपियां से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ आरशीपुरा इलाका
8 रोज से बिजली से महरूम है। यहाँ तक बिजली पहुंचाने के लिए दरख्तों पर तारें लटकाई गई हैं। बिजली की तारें इतनी नीची हैं कि आम इंसान को सर झुकाकर चलना पड़ता है। मकामी लोगों ने बताया कि उन्होंने पीडीडी को कई बार वाकिफ कराया मगर बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर नहीं बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि महकमा कुछ नहीं कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर शेख मोहम्मद रफ़ी ने दरख्वास्त की है कि इलाके के लोगों के मसाइल जल्द अज जल्द हल किए जाए। मैं आरशपुरा से हूँ, मैं आरशपुरा का बाशिंदा भी हूँ और हमें 8 दिन से गुप अंधेरे में रखा गया। अब जब आप लोगों को बुलाया गया तो आपने खुद ब खुद देखा हमारे 50 साल पुराने तारे लगे हुए हैं। हमने ऐसे लकड़ी के खंभों पर ऐसे ऐसे तार रखी है। अगर यहाँ 2000 केवी भी ट्रांसफार्मर यहाँ लगाए गए, आगे तारें बोस है, वो सारे डेड है। ट्रांसफार्मर तब भी चालू नहीं हो जाएगा। दिस नजर पजर गैर टाइम अपरी आए रहदार सोन मकसद ये ठीक कर पोल पोल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।